Vasai is really beautiful. Nature has given so much with both the hands, as we say. On the east there are the Sahyadri ranges. Then on the west we have the Arabian Sea, the vast Arabian Sea. We have beautiful seashore. Then on the north we have the Vaitarana river, and on the south we have the Bhainder Creek. So this is all endowed with natural beauty. Vasai was, till 1980, as I said, was a sleepy Vasai. People lived their life, they cultivated vegetables. And slowly in 1980s, overflow from Bombay rushed to Vasai. वसई का जो ग्रोथ हुआ है, वसई विरार का जो एक विकास की प्रक्रिया में जो आगे बढ़ी है, तो उसको अगर समझना है तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मुंबई का जो डेवलपमेंट हुआ, वो मुंबई के डेवलपमेंट का असर वसई विरार के ऊपर कैसे गिरा। जब मुंबई विकसित हो रही थी, उनको लगा कि मुंबई को अभी एक्सपांड करने की ज़रूरत है, और एक तरफ सिडको का गठन हुआ, दूसरी तरफ MMRDA का गठन हुआ, और तीसरी मुंबई विकसित करने का जो है वो प्लानिंग स्टेट गवर्नमेंट ने किया। Since the regional planning began here, the whole region was seen as an integrated rural-urban balanced kind of spatial structure. Since then, there were efforts to diversify the activities from Mumbai. This was particularly in respect of office sector jobs, industrial jobs, port and other such activities. And they were all largely concentrated in the southern tip of Mumbai, which had no growth possibility. So the growth was expected to go northwards beyond Mumbai, where the train was taking them, which is obviously Vasai Virar. So momentum has started. Mumbai metropolitan region came into existence from 1971. Because of cheap housing compared to the Bombay costly housing, this area has came into the existence. From very non-existent area in 1971 to 2021-20, now it is almost 30 to 40 years now. It has come to a stage of getting a name of Third Mumbai. Very spectacular achievement actually, with given the infrastructure facilities in Vasai Virar. आज वसई की आबादी करीबन 22 लाख के आसपास है, जिसमें यहाँ के नेटिव लोग 2 लाख के आसपास है। 20 लाख लोग ये बाहर से आए, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से से, उड़ीसा से 11 लाख लोग ये माइग्रेंट लेबर्स है, जिसमें कोई फैमिली के साथ रहते हैं या ज़्यादातर लोग ये सिंगल माइग्रेंट करके रहते हैं, कहीं ना कहीं रेंट में या स्लम में। तो वसई विरार का जो ग्रोथ हुआ वो 2 तरह से हुआ। एक तो मुंबई को लेबर सप्लाई करने वाली कॉलोनी, और दूसरा जो है कि यहाँ पे भी कुछ इंडस्ट्रीज़ आई, प्रोडक्शंस हाउसेज आए। Vasai Virar is a very unique place. It's a very unique place with unique history, unique ecology. It has got heritage, it has got a cultural aspect which needs to be respected and seen how planning can actually incorporate those. In systems like these coastal ecologies, water plays a very important role in this whole city making. And if you see the plan of Vasai Virar, water doesn't seem to be accounted for in the making of the plan. शहर में बिल्डिंगें बन रही थी, तभी वहाँ पर पीने का पानी नहीं था, बिल्डिंग बनाने के लिए पानी नहीं था, क्योंकि स्टेशन के बाजू में पूरी खारलैंड और वेटलैंड थी। तो हमारे गांव से टैंकर के माध्यम से हजारों टैंकर रोज के पानी स्टेशन में जाने लगा। उपसा केल्यामुळे काय झाले की पाण्यामध्ये इकडच्या पाण्यात क्षार वाढायला लागले आणि लोकांना शुद्ध पाणी त्या ठिकाणी प्यायला मिळत नव्हतं। There is a issue also of, let's say, livelihood, and livelihood also has a history. They still continue fishing and farming very profitably, and that you are going to spoil when you are going to do unplanned urbanization. वसई विरार ये जो शहर है, ये शहर ही अनह्यूमन क्या बोलते डेवलपमेंट की दिशा में गया है, और वो उसके जो परिणाम हैं वो लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। मुंबई के बाजू में रह के भी
यहाँ पर ठीक तरह से डेवलपमेंट हो नहीं पाई है। आपको क्लियर कट दिखेगा कि यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों का संघर्ष है, उनके इनसिक्योरिटी का मुद्दा है, वहाँ नागरिक सुविधा के इश्यूज है, बार बार फ्लड आता है, सुवेज की व्यवस्था नहीं है। मतलब एक तरफ आवास और हैबिटेबिलिटी के ऊपर असर और दूसरी तरफ लाइवलीहुड के ऊपर असर। आज वसई शहर इतना बड़ा हो गया, यहाँ रास्ते हैं, यहाँ बिल्डिंग्स है, यहाँ पे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है, लेकिन ये बनाने वाला हमारा मजदूर भाई कहाँ है? कोई रिक्शा चलाता है, कोई फेरी वाला है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, कोई डोमेस्टिक वर्कर्स है, फिशरमैन है, कोई हमारा खेती मजदूरी में काम कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग जो अलग अलग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ना ही उसको घर पे ठीक से पानी मिलता है, लाइट मिलता है, बिजली मिलता है, और जहाँ वो काम करता है उस वहाँ पे उनको किसी भी तरह का सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। उनके लिए आपको बताता हूँ, ना डंपिंग ग्राउंड है, ना शिक्षा की कोई नई गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था हुई है, ना अस्पताल आए हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ये सब चीज़ें डेवलपमेंट के नाम पे सब बर्बाद करने की काम चल रही है। वसई जैसे शहर जो उभरने वाले शहर है, जो पिछले 20 साल में बने हैं, मुंबई जैसा शहर पिछले 100-150 साल से बना है, लेकिन वसई शहर तो 20 साल से बना है। अगर नए शहर में भी इस तरह से हालत होगी तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की पॉलिसियाँ गलत हो रही है। So Vasai is really at a, as I said, crossroads. It requires total attention by the governments, and I think the second thing that is required in Vasai Virar area is both from government side, the political leadership and the lobbies that are working there, all must understand that there has to be a point of convergence from where we should look really forward. आज की जो स्थिति है वो स्थिति से अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हाउसिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इनसिक्योर लोग हैं, तो इनकी सिक्योरिटी जो है कर देनी चाहिए। दूसरा है कि यहाँ नागरिक सुविधाओं का अभाव है, तो नागरिक सुविधा जो है इनको देनी चाहिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा। और तीसरा मुझे लगता है कि पूरे शहर के हैबिटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ का पानी, ऐसी सुवेज की और ड्रेनेज की व्यवस्था कि जो फ्लड आता है वो फ्लड ना आए। There has to be a lot of effort at creation of new greenery in that area, identify what is sustainable in that area, and also how do you actually create a stormwater drainage system that addresses the needs of development but ensures safety of the people and preservation of the fragility of environment that is there. और जो चौथा पांचवा जो मुद्दा है वो बेसिकली ओपन स्पेसेस, खेल के मैदान हैं या फिर गार्डन्स है, ये बहुत सारे ऐसे जो स्पेस है वो कम्युनिटी स्पेस है। लेकिन जैसे जैसे कोई भी शहर का डेवलपमेंट होता है तो ये कम्युनिटी स्पेस ख़त्म हो जाती है। ये सब जो चीज़ें हैं वो सिक्योर करने की ज़रूरत है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बोलते हैं हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ डिपो बनेगा, ये होएगा, बहुत दिक्कत है। ऐसा बोलते हैं लेकिन कुछ भी नहीं, इधर विकास ही नहीं हो रहा है। तक जाओ पैदल, और जिसको चलने की शक्ति नहीं रहेगा वो बैठ जाए। विकास ही नहीं हो रहा बाबू इधर। हैबिटेबिलिटी वाला सिटी अगर डेवलप करना है तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ की सिस्टम काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। आणि इकडचे जे विशेष करून स्थानिक लोक जे आहेत, विशेष शेतकरी आणि कोळी, त्यांना देखील कसं त्यांचा विकास होईल ह्या दृष्टीने सरकारने लक्ष द्यायला हवं। आणि आताची परिस्थिती काय झाली आहे, महागाईमुळे आम्हाला काहीच परवडत नाही, काही आमचं शिल्लक राहत नाही, उलटे आमच्या खिशातून पैसे येतात। 3-4 वर्ष झाले धान्य नाही भेटत साधारण सोसायटीन, ऑनलाईन नाही, तुमचं ऑनलाईन नाही। एवढी परिस्थिती वाईट ना की त्याचे विचार सुद्धा करायला मला टेन्शन होते। असं गव्हर्नमेंटने आमच्यावर जर लक्ष दिलं तर आम्हाला खूप फायदा होईल ना, खूप फायदा होईल। जैसे नवी मुंबई जब तैयार हुआ तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया, लेकिन वसई विरार में कुछ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ है। वसई में लोग सिर्फ रहने के लिए आते हैं और काम के लिए मुंबई में चले जाते हैं। I think the first answer to Vasai should be bringing employment to that area and economy to that area, and that will actually boost up its stature. हमारा विजन है, हम लोग यहाँ के नेटिव हैं, यहाँ की आपको बताता हूँ कि यहाँ पर पेड़ पौधे बचने चाहिए, यहाँ की खेती बचनी चाहिए, यहाँ के वेटलैंड्स बचने चाहिए, यहाँ का समुंदर
अच्छा रहना चाहिए, ये सब चीज़ें बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं. आणि त्या ठिकाणी दळणवळणाची जी व्यवस्था असते, परिवहन सेवा वगैरे, ह्या ज्या काही साध्या आणि अगदी छोट्याशा ज्या आहेत मूलभूत सुविधा, त्या सर्वसामान्य जनतेला मिळणं अगदी महत्त्वाचं आहे. Today we need to completely change our planning paradigm, and that is possible in Vasai Virar. We can actually plan a city which can integrate both the plantation zone, the food producing zone, store water, okay, as well as produce energy and make an ecological city. Take advantage of urbanization which is happening. Also balance the idea of making it a city where poor people can stay, where industries can work. वसई का भौगोलिक क्षेत्र ध्यान में रखते हुए वसई में एम्प्लॉयमेंट हब बनाने का काफ़ी अच्छा मौका है. अगर इको टूरिज्म को यहाँ पे हम बढ़ावा देते हैं तो यहाँ का पर्यावरण जो है वो भी सुरक्षित रहेगा, लोगों को रोजगार भी रहेगा और साथ साथ में वसई की जो ग्रीनरी है वो लोगों के सामने भी आएगी. एक शहर करके उसको पहचान भी मिलेगी. And as far as the future projects are concerned, this area will get the metro rail, and Bombay-Baroda Expressway is also coming, and dedicated freight corridor is cutting across our area. Still, Vasai Virar is going to be the most significant growth area by even 2041 as per our projections currently as expressed in the plan. हमारी खुद की मांग है कि हमारा शहर वर्ल्ड में नंबर 1 रहना चाहिए ग्रीन सिटी करके. ये हमारा विजन है कि भविष्य में हम लोग बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर रह सकेंगे और लोगों को दिखा सकेंगे कि ये डेवलपमेंट है.